ریاست کرناٹک کے انیکل تعلقے میں ہسکور مدورما جترا کے دوران تیز ہواؤں کی وجہ سے 120 فٹ اونچا رتھ گرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں ایک شخص کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق کرناٹک کے انیکل تعلقے میں ہسکور مدورما جترا کے دوران آس پاس کے گاؤں کے لوگ اپنے گاؤں سے رتھ لے کر جترا میں آتے ہیں۔ ہفتے کی شام کو لایا گیا 120 فٹ اونچا ڈوڈنا نگر منگلا رتھ تیز ہواؤں کی وجہ سے گر گیا۔ اس واقعے میں ایک شخص کی موت ہو گئی۔ BRS کی کارگزار صدر و سلسلہ MLA کے تارک راما راؤ نے سلسلہ کے ایک شخص کو اپنے خرچ پر چائے کا سٹال لگا کر دینے کا وعدہ پورا کیا۔ تفصیلات کے مطابق سلسلہ کے بدکما گھاٹ پر سرینیواس نامی شخص KTR ٹی سٹال چلا رہا تھا، تاہم کلکٹر کی ہدایت پر میونسپل عملے نے اس کے سٹال کو وہاں سے ہٹا دیا۔ کلکٹر کے حکم پر چائے کا سٹال ہٹانے کے بعد سرینیواس بے روزگار ہو گیا تھا۔ اس واقعے کا علم ہونے پر KTR نے متاثرہ سرینیواس کو اپنے خرچ پر چائے کا سٹال لگا کر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ KTR نے اپنا وعدہ نبھایا، انہوں نے اپنے خرچ پر سرینیواس کو چائے کا سٹال لگا کر دیا۔ سرینیواس اور ان کے افراد خاندان نے MLA KTR سے اظہار تشکر کیا ہے۔ کشائی گوڑہ پولیس اسٹیشن حدود کے ایک صنعتی علاقے میں کچرے کے ڈھیر میں پینٹ کے ڈبے میں دھماکے کی وجہ سے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ میعاد ختم ہونے یا پھر آدھے استعمال شدہ پینٹ کے ڈبے زیادہ عرصے تک ذخیرہ کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ کشائی گوڑہ پولیس اسٹیشن حدود کے صنعتی علاقے میں ایک پینٹ کے ڈبے میں دھماکے کی وجہ سے ایک شخص کی جان چلی گئی۔ پولیس انسپکٹر نے بتایا کہ 37 سالہ ناگراجو کچرے کو صاف کر رہا تھا کہ اچانک ایک ایکسپائرڈ پین کے ڈبے میں دھماکہ ہوا اور اس شخص کی موت ہو گئی۔ کشائی گوڑہ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کریم نگر میں ایک نوجوان نے حالت نشہ میں ایک 2 منزلہ عمارت پر چڑھ کر اور عمارت سے چھلانگ لگانے کی دھمکی دے کر ہلچل مچا دی۔ تفصیلات کے مطابق کریم نگر کے جوتی نگر کیمسٹری بھون کے روبرو ایک نوجوان جو کہ حالت نشہ میں تھا 2 منزلہ عمارت پر چڑھ گیا اور اس نے عمارت سے چھلانگ لگانے کی دھمکی دی، خوب ہنگامہ بھی کیا۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر پولیس اور آتش فروغ عملہ موقع پر پہنچ گیا اور انہوں نے نوجوان کو نیچے اتارنے میں کامیابی حاصل کی۔ بعد ازاں پولیس کی جانب سے اس نوجوان کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ حیدرآباد کے گولی گوڑہ علاقے میں واقع درگاہ اور قبرستان میں شیڈ نصب کرنے کے لیے درختوں کی شاخیں کاٹنے کے بجائے درگاہ کے نگران کار کی جانب سے درخت کاٹ دینے کا واقعہ پیش آیا۔ وقف بورڈ کی جانب سے اس سنگین اقدام کا کوئی نوٹ نہیں لیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرانے شہر کے علاقے گولی گوڑہ کے اولڈ بس اسٹینڈ کے قریب واقع درگاہ اور قبرستان میں موجود درختوں کی شاخوں کی وجہ سے وہاں پر شیڈز نصب کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھی، جس کے بعد سید اظہر قادری نے محکمہ جنگلات کے افسران کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے 2 درختوں کی شاخیں کاٹنے کی اجازت طلب کی۔ فارسٹ آفیسر نے درگاہ و قبرستان کا دورہ کرنے کے بعد تعمیری کاموں میں رکاوٹ بننے والے 2 درختوں کی شاخیں کاٹنے کی اجازت دی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ درگاہ کے کیئر ٹیکر نے احاطہ درگاہ میں موجود تمام درخت کاٹ دیے۔ سید اظہر قادری کے مطابق درخت کاٹنے کے اس سنگین اقدام کا وقف بورڈ کی جانب سے کوئی نوٹ نہیں لیا جا رہا ہے اور نہ ہی خود کو درگاہ و قبرستان کمیٹی کا صدر بتانے والے کیئر ٹیکر کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ورنگل ضلع کے دیورا پلا منڈل کے کداویندی گاؤں میں ریت کی غیر قانونی نقل و حمل کی جا رہی ہے۔ MLA یاشسوینی ریڈی کے ریت مافیا کی حمایت کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیورا پلا منڈل کے کداویندی گاؤں کی ندی سے ٹریکٹرز کے ذریعے ریت کی غیر قانونی نقل و حمل کی جا رہی ہے۔ ریت مافیا کو پالاکرتی کی کانگریس MLA یاشسوینی ریڈی کی حمایت حاصل ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ دوسری جانب عہدیداروں پر ریت کی غیر قانونی نقل و حمل کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا بھی الزام ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے کہا کہ BRS کارکنان کے خلاف غیر قانونی مقدمات درج کرنے والے پولیس افسران کے نام درج کیے جائیں گے۔ اقتدار میں آنے پر کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔
साबिक वजीर व सिरसिला MLA KTR ने इतवार को करीमनगर जिले में पार्टी कारकुनान के एक इजलास से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि करीमनगर ही वो सरजमीन है जिसने तेलंगाना तहरीक में जान फूंकी थी। उन्होंने पार्टी कारकुनान की हौसला अफजाई की और KCR की जानिब से मुनक्किद होने वाले जलसे को कामयाब बनाने के लिए इक़दाम करने का मशवरा दिया। दरमियान असना KTR ने कहा कि BRS कारकुनान के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस अफसरान के नाम दर्ज किए जाएंगे और BRS के बरसर इक़्तिदार आने पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने उपल स्टेडियम की तज़ीन व आराइश के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च किए। क्रिकेट शायकीन नए स्टेडियम में क्रिकेट मैच का मुशाहदा करेंगे। उपल के राजीव गांधी स्टेडियम में IPL मुकाबलों के इनेकाद की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से स्टेडियम की तज़ीन व आराइश पर 5 करोड़ रुपये सर्व किए गए हैं। HCA सदर जगन मोहन के मुताबिक स्टेडियम की दागदोजी की गई है। नॉर्थ स्टैंड्स में नए रेस्ट रूम्स भी तामीर किए गए हैं। AC टाइल्स, खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम्स और कॉरपोरेट बॉक्सेस तब्दील कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के शायकीन एक नए स्टेडियम में मैच से लुत्फ अंदोज होंगे। आपको बता दें कि आज उपल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मुकाबला हुआ। मेडचल मलकाजगिरी जिले के पोचारम IT कॉरिडोर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक पागल शख्स ने 4 साल लड़की पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। लड़की अस्पताल में इलाज के दौरान फौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले जगदीश्वर अपनी बीवी और बेटी रिया कुमारी के साथ पोचारम म्यूनिसिपैलिटी में रहते थे। मगरबी बंगाल के रहने वाले 30 साला हिप्ना हेम्बम ने IT कॉरिडोर में इन्फोसिस के करीब कल्पादारू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अपनी रियासत के दीगर कारकुनान से मुलाकात के दौरान अचानक रिया कुमारी पर हमला कर दिया। जहनी मरीज ने वहां खेल रही रिया कुमारी के सर पर शराब की बोतल से वार किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। लड़की को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि पागल शख्स ने वरंगल हैदराबाद कौमी शाहराह पर कई गाड़ियों पर पत्थर भी फेंके और इस हमले में 2 कारों और एक ऑटो के शीशों को नुकसान पहुंचा और कई अफराद भी जख्मी हो गए। हमलावरों को मुकामी लोगों ने पकड़कर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस पागल शख्स को हिरासत में ले लिया। निर्मल जिले के कुबीर मंडल में गांव वालों ने बरकी कटौती के खिलाफ एहतजाज करते हुए 24 घंटे बिजली फराहम करने का मुतालबा किया है। कुबीर मंडल में सोनारी सब स्टेशन पर गांव वालों का बड़े पैमाने पर एहतजाज देखा गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सब स्टेशन से दूसरे देहातों को बिजली फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से उनके गांव में बरकी कटौती हो रही है। एहतजाज करने वाले अफराद के मुताबिक 20 साल पहले उन्होंने सब स्टेशन के लिए अपनी अराजी दी थी, लेकिन अब उनके गांव में बरकी कटौती करते हुए दूसरे गांव को बिजली फराहम की जा रही है। देहातियों ने फौरी तौर पर 24 घंटे मियारी बरकी फराहम करने का मुतालबा किया है। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी की जानिब से हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत के मौके पर बेस्ट फातिमा ओवैसी KG2 PG एजुकेशनल कैंपस बंडलागुड़ा में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत के मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी की जानिब से सालाना फातिहा का बेस्ट फातिमा ओवैसी KG2 PG एजुकेशनल कैंपस बंडलागुड़ा में एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में उलमा व मशाइखीन और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इफ्तार के बाद इशाया का भी एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार में बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। साबिक वज़ीर आला व BRS के सरबराह चंद्रशेखर राव ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में अगर इत्तेहाद ना होता तो चंद्रबाबू नायडू कभी जीत ना पाते। उन्होंने कहा कि हमें ज़बरदस्ती तौर पर आंध्रा में शामिल किया गया था। इस ज़मीन पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। सबको एक एक KCR की तरह बनना चाहिए और तेलंगाना के हुकूक़ के लिए जदोजहद करनी चाहिए। 10 साल तक तेलंगाना में कोई मुश्किलात नहीं थी, मगर अब तेलंगाना मसाइल में उलझ गया है। रियासती वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने असेंबली में कहा है कि 2 लाख से ज़ायद कर्ज रखने वाले किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होगा। ये कांग्रेस हुकूमत का फैसला है। BRS ने असेंबली से वॉकआउट कर दिया। BRS के अरकान असेंबली का कहना है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खुद ऐलान किया था कि जो किसान 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज रखते हैं, अगर वो रकम बैंकों को अदा करेंगे तो हुकूमत 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ करेगी। अब अपना वादा बदल कर वो ये कह रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा कर्ज रखने वालों का कर्ज माफ़ नहीं किया जाएगा, जो किसानों के साथ धोखा है। इसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए BRS MLAs ने असेंबली से वॉकआउट कर दिया। शहर हैदराबाद की आउटर रिंग रोड पर एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। ये हादसा कल शब पेश आया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ऐवान असेंबली में महकमा सेहत व ख़ानदानी बहबूद, ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, एनिमल हस्बेंड्री, लेबर और रोज़गार और दीगर महकमेजात के मुतालबात ज़र पर बहस में हिस्सा लेते हुए मीर ज़ुल्फ़िकार अली रुकन असेंबली चारमीनार ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 3 सुपर स्पेशलिटी दवाखाने LB नगर, सनत नगर और मौजूदा गच्चीबौली को कारकर्द बनाया जाए ताकि शहर में मौजूद टीचिंग हॉस्पिटल्स, उस्मानिया दवाखाना और गांधी पर बोझ कम हो सके। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज, मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए। हैदराबाद शहर बिलखुसूस पुराने शहर में बस्ती दवाखानों में डॉक्टर्स की तादाद को पूरा किया जाए ताकि गरीबों को इलाज की सहूलत हो सके। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि जब वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा तो हम इसे राज्यसभा में भी ले जाएंगे। हम इसे तफसील से वजाहत करेंगे। मुस्लिम तंजीमें भी जानती हैं कि वक्फ तरमीमी बिल का मकसद मुस्लिम जायदादों पर कब्ज़ा करना नहीं है। इससे शफाफियत बढ़ेगी, ये गरीबों और ख़वातीन की मदद करेगा। ये एक निज़ाम के लिए कोई किसी की ज़मीन कैसे छीन सकता है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, ये मुल्क दस्तूर के तहत चलता है। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ने अर्थ आवर मनाया। हिंदुस्तान के मशहूर मकामात जैसे कि इंडिया गेट दिल्ली, तेलंगाना सेक्रेटेरिएट हैदराबाद, CSMT विरसा की इमारत मुंबई और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता ने 22 मार्च को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक रोशनियां बंद करते हुए योम अर्ज यानी अर्थ डे मनाया ताकि तवानाई की बचत की जा सके और मुस्तकबिल को रोशन किया जा सके। रियासत केरला से ताल्लुक़ रखने वाली कैनेडियन पिग्मी नस्ल की बकरी कुरम्बी को दुनिया की सबसे छोटी बकरी के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तकरीबन 1.3 फीट लंबी ये बकरी 2021 में पैदा हुई थी। इसे पालने वाले किसान ने बताया कि ये बकरी काफ़ी बेहतर है और अब ये दोबारा हामिला भी है। हल्का असम्बली याकुतपुरा के कुरमागुड़ा डिवीज़न में मजलिस और किंग्स ग्रुप की जानिब से मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन किट्स तकसीम किए गए। इब्तदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन के हाथों ये किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर नसीर खान किंग्स ग्रुप, सैयद मुश्ताक अहमद PA, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कुरमागुड़ा के माविन कारपोरेटर शिफात अली और मजलिस के दीगर कारकुनान मौजूद थे। मोदी के दोस्त ट्रंप एक मरतबा फिर हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी तरह बरसर पैकार हो गए हैं।
انہوں نے کہا کہ ہم ٹیرف کے معاملے میں نرم رویہ نہیں اختیار کریں گے. ہندوستان امریکہ کے خلاف 100 تا 200% ٹیرف عائد کرتا ہے، اس لیے ہم بھی ویسا ہی کر رہے ہیں. نریندر مودی خاموش کیوں ہیں اور بی جے پی آئی ٹی سیل اس پر کیوں خاموش ہے؟ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور.